Namaste students, myself Jeevan Mr. KL Nagar, Assistant Professor, Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Students, I will prepare this lecture class for program BSc Agriculture Honors AdSense. My subject is Protect Cultivation. Students, today I am discuss about cucumber cultivation under protect structure. So let's start your topic. Cucumber cultivation. Botanical name Cucumis sativus L. Family Cucurbitaceae. क्रोमोसोम नंबर हैं 2n = 14. नेटिव इसका जो ओरिजिन है इंडिया. एंड इंसेस्टर की बात करते हैं, उसका जो वाइल्ड स्पीसीज के फॉर्म में जानते हैं इनको कुकुमिस हार्ड विकी. एंड इम्पोर्टेंस की बात करते हैं अगर कुकुम्बर की, तो कुकुमिस सेटाविस इज ए एडिबल कुकुम्बर पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर crisp texture and the taste. Cucumber is a truly versatile vegetable because of wide range of usage from salad to pickles and digestive aid to beauty product. It is a very good source of potassium and important and intercellular electrolytes. 100 gram of cucumber provide 147 milligram of potassium. Cucumber contain unique antioxidant is moderate ratios such as beta carotenes and the alpha carotenes and vitamin C, vitamin A and zeaxanthin and the lutein. अगर सोयल एंड क्लाइमेट के अंदर हम डिस्कस करते हैं तो कुकम्बर प्रिपेयर लाइट टेक्सचर सोयल दैट आर वेल ड्रेनेज हाई इन ऑर्गेनिक मैटर एंड दे हैव pH of 6 to 6.8. adapted to a wide range of soil but will be produced early in sandy soils. Cucumber are the tolerant to acid soils लेस देन pH 5.5, मतलब डाउन होती है pH मान अगर उसका pH 5.5. इसमें द ग्रीन हाउस कुकम्बर जनरली ग्रो क्विक वेल इन ए वाइड रेंज ऑफ सोयल pH 5.5 to 7.5 but a pH 6 to 6.5 for mineral soil and the pH of 5 to 5.5 for organic soil are generally accepted as optimum. क्लाइमेट के अंदर बात कर रहे थे हम, तो मैक्सिमम ग्रोथ occurs at day and the night temperature of about 28 degrees centigrade. Maximum food production is achieved with at night temperature about 19 to 12 degrees centigrade, 20 degrees centigrades, and at the temperature of 22 degrees centigrade, and the minimum temperature should not be lower than 18 degrees centigrade for sustained productions. Prolonged temperature above 35 degrees centigrade should also be avoided as fruit production and the quality are affected at extremely high temperature. अगर हम सोइंग की बात करते हैं तो उसका जो टाइमिंग होता है जुलाई से सितंबर के बीच एंड दी जनवरी टू फरवरी के बीच. अगर सीड रेट की बात करते हैं तो 3 to 5 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से जो कुकम्बर होता है उनकी सीड रेट मानी जाती है. एंड दी स्पेसिंग की बात करते हैं तो 1.5 into 0.5 मीटर
या फिर 1.5 टू 1 मीटर भी उसका स्पेसिंग रख सकते हैं। इसमें इरिगेशन के अंदर बात करते हैं तो सबसे बेस्ट जो सिस्टम होता है इरिगेशन का, ड्रिप इरिगेशन। इसमें इन लाइन लेटरल लाइन माई बी इंस्टॉल इन द मिडल ऑफ बेड, डिस्टेंस बिटवीन टू ड्रिप 30 सेंटीमीटर एंड इट डिस्चार्ज एट इज 2 लीटर पर हाउस। डायमीटर ऑफ राइजर इज 16 मिलीमीटर। फर्टिलाइजर अगर मैनेजमेंट वाली बात करते हैं हम, तो कुकम्बर हैज ए हाई न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट एंड द ग्रो रैपिडली व्हेन दी सप्लाई विद सफिशिएंट न्यूट्रिएंट। नॉर्मली नाइट्रोजन के अंदर बात करते हैं तो 200 नाइट्रोजन होना ज़रूरी है एंड रेशियो में 125 फास्फोरस होना चाहिए एंड 125 पोटेशियम पर किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से होना चाहिए। इसमें अगर हम रिंग मैंडेट की बात करते हैं तो इसमें 100 नाइट्रोजन एंड 50 पोटेशियम एंड 50 फास्फोरस किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से होना चाहिए। इसमें अगर कल्चरल प्रैक्टिस की बात करेंगे हम कुकम्बर के अंदर, तो इसमें है द ट्रेनिंग एंड द प्रूनिंग बेसिक प्रिंसिपल इन डेवलपमेंट ट्रेनिंग सिस्टम is to uniform maximum the leaves interception of sunlight throughout the house in staking की बात करते हैं तो staking in the cucumber has been they found the very effective in getting maximum yield and the better quality fruits। अगर ट्रेनिंग के टाइप की बात करेंगे हम तो फर्स्ट में है सिंगल स्टेम ट्रेनिंग, जो इसका जो स्पेसिंग रखा जाता है 60 इंटू 45 सेंटीमीटर एंड सेकंड में अम्ब्रेला सिस्टम का जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है, इसका जो स्पेसिंग होता है 60 इंटू 60 सेंटीमीटर का एंड जो वी शेप का जो सिस्टम बनता है ट्रेनिंग का, इसका जो स्पेस होता है 60 इंटू 60 सेंटीमीटर। जो हम इमेज जो आपको जो इमेज में जो दिखाई दे रहा है 3 टाइप का जो ट्रेनिंग सिस्टम है, वी शेप सिस्टम का, अम्ब्रेला शेप का सेकंड में, तीसरा है सिंगल स्टेम वाला सिस्टम। प्रूनिंग के अंदर बात कर रहे थे हम तो प्रूनिंग के अंदर बात करेंगे कि प्रूनिंग इम्प्रूव द फ्रूट क्वालिटी एंड द यील्ड। जो प्रूनिंग का मेन जो उद्देश्य होता है वो फ्रूट की एक तो क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और यील्ड भी अच्छे से यील्ड को भी मैक्सिमम यील्ड भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद में एज द प्लांट द ग्रो अप टू स्ट्रिंग एंड द रिमूव ऑल द लेटरल बर्ड अप टू द 6 नोड्स। इसके बाद प्रूनिंग इज द लेटरल बर्ड एंड अलाउड द प्लांट टू बिकम लार्ज इनफ टू सपोर्ट कंटिन्यूस हेल्थी एंड द फ्रूट डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट के अंदर फोर्थ पॉइंट में बात करेंगे कि इन एडिशन टू लेटरल बर्ड्स एंड इसमें तो ऑल द फ्रूट्स एंड द शुड आल्सो रिमूव ऑफ द पॉइंट्स। कल्टीवर की बात कर रहे हैं हम, तो अगर कल्टीवर जैसे कल्टीवर की बात करेंगे वेराइटी पूसा सीडलेस कुकम्बर के अंदर बात करते हैं। पूसा सीडलेस कुकम्बर 6 की में जो उसका जो ईयर इज ये रिलीज हुआ था लगभग 2015 से 2016 के बीच में ये रिलीज हुई थी ये वेराइटी। ये फर्स्ट एक्स्ट्रा अर्ली 40 to 45 days for first fruit harvesting, improve variety of Parthenocarpic gynoecious cucumber suitable for the cultivation in protect cultivation। जो ये प्रोटेक्ट कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सूटेबल वेराइटी है पूसा सीडलेस कुकम्बर 6। सेकेंड वेराइटी की बात करते हैं, इसमें है पूसा सहयोग जिसका ब्रीडिंग मेथड भी है। जो ये ब्रीडिंग मेथड किसके द्वारा होता है, हेट्रोसिस पेडिग्री या फिर पेरेंटागी के द्वारा क्रॉस करते हैं। अगर इसका क्रॉस किसके द्वारा क्रॉस किया गया था, जापानीज जिप्सम लाइन एंड द ग्रीन लॉन्ग नेपल के द्वारा। इम्पोर्टेंट अगर ट्रेड की बात करते हैं तो ये अर्ली मैच्योरिटी होती है, जल्दी से मैच्योरिटी हो जाती है एंड दी हाई यील्ड में भी बहुत बेस्ट मानी जाती हैं। इसका जो फ्रूट होता है लॉन्ग होता है एंड सिलेंड्रिकल होता है। इसमें डार्क ग्रीन का जो फ्रूट है उसमें तैयार होता है। इसके बाद वेलो या फिर स्ट्रिप्ट एंड प्लेसी क्रिप्स होता है। वैरायटी में अगर हम आगे बात करेंगे तो पूसा उदय, जो पूसा उदय में जो ब्रीडिंग मेथड रखा था पेडिग्री सिलेक्शन सिस्टम वाला। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट ट्रेड की बात करते हैं कि ये 1 to
1.5 मीटर लॉन्ग उसका प्लांट का लेंथ होती है। इसके बाद में द फ्लावर जो बी एफ द मोनोसियस फ्लावर होता है ये। इसके बाद फ्रूट आर द मीडियम साइज का फ्रूट रखा जाता है इसका, जिसमें 13 टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्रूट की साइज होती है। आगे बात करेंगे कि स्टैंड है जो स्टैंड 8 वाला जो वेराइटी है, इसका जो ब्रीडिंग मेथड है, इंट्रोडक्शन, पेडिग्री। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे कि जापानीज लॉन्ग ग्रीन जो इसका यहाँ जो ब्रीडिंग मेथड इंट्रोडक्शन के द्वारा इसको यूज किया गया था। एंड द इम्पोर्टेंस डेट की बात करते हैं इसकी जो जापानीज लॉन्ग ग्रीन के अंदर, तो प्लांट आर द अर्ली एंड द प्रोपिक बियरिंग द फर्स्ट पीकिंग स्टार्ट 45 डेज आफ्टर सोइंग। और इसका जो फ्रूट की बात करते हैं तो येलो कलर का फ्रूट एंड द ग्रीन कलर का भी, जो येलो एंड द ग्रीन जो 30 टू 40 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्रूट्स होगा। एंड दी वाइटिश ग्रीन की साइज में, जो वाइटिश ग्रीन कलर में एंड दी लाइट ग्रीन कलर में। वेराइटी आर एसेंशियली रिक्वायर स्टेक फॉर द स्टेक फ्रूट के। इसके बाद में आगे की वैरायटी है कल्याणपुर ग्रीन, जो भी एक बहुत ही बेस्ट वैरायटी होती है ग्रीन हाउस के लिए। इसके बाद में फुल्ले सोबंगी, जिसको हम सिलेक्शन 75-110 के नाम से जानते हैं। आगे की जो वैरायटी है नेक्स्ट है फुल्ले प्रियंका के नाम से भी, जो इसका ब्रीडिंग मेथड रखा गया था हाइब्रिडाइजेशन से। और इसके बाद में हम बात करते हैं अदर वेराइटी की, अन्य वेराइटी की बात करते हैं पंत शंकर खीरा 1, पंत खीरा 1, पंत पार्थेनोकार्पी खीरा 2 एंड इसके बाद पार्थेनोकार्पी खीरा 3। इसके बाद हिमांगी एंड CO1। ये अदर वेराइटी भी इसके अंदर प्लॉटेड कल्टीवेशन के अंदर तैयार कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं इसको। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर बात करते हैं द साइड सूड या लेटरल या सकर्स आर द यूज फॉर प्लांटिंग मटेरियल, जिसकी जो साइड सकर्स होती हैं इससे भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए यूज कर सकते हैं प्लांटिंग मटेरियल को। एंड द टाइमिंग द यूजिंग दिस लेटरल एंड द प्रोपोगेशन मटेरियल डिपेंड लार्ज ऑन द पर्पज ऑफ द स्टेकिंग एडवांस स्टेज ऑफ द स्टेज प्लांटिंग एंड द रियली क्रॉपिंग द लेटरल सूट एंड सूट द 9-10 सेंटीमीटर आर द टेकन फ्रॉम द प्लांट्स। मतलब जब हम लेटरल सूट रखते हैं 9 से 10 सेंटीमीटर के आसपास उसकी सूट को रखते हैं, टेकन फ्रॉम द प्लांट्स हैं। बट द एटमोस्ट केयर द रिक्वायर अवॉइड द कटिंग फ्रॉम द वायरस अफेक्टेड प्लांट। हम उस पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह वायरस फ्री प्लांट होना ज़रूरी है। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू स्टेरिलाइज टू द टूल्स। जो टूल्स हम यूज करते हैं कटिंग के लिए वह भी एक स्टेरिलाइज होना चाहिए। नाइफ हो नाइफ भी, जो टूल्स या नाइफ जो जितने भी यूज करने वाले सिस्टम होते हैं उन सबको स्टेरिलाइज करना ज़रूरी है। यूज फॉर द मेकिंग द सच ऑपरेशन आइदर दी ब्लीचिंग पाउडर से भी हम उसको यूज कर सकते हैं, या फिर पाउडर होता है मिल्क पाउडर से भी, या फिर कोकोपीट माई बी यूज फॉर द रूटिंग मीडिया। अगर हम फिर उसको जब कटिंग को यूज करते हैं ग्रो करने के लिए तो रूटिंग मीडिया यूज करते हैं, जिसमें कोकोपीट यूज करते हैं। इसके बाद सीडलिंग माई बी ट्रांसप्लांटिंग 15 डेज लेटर। हार्वेस्टिंग के अंदर बात करेंगे जनरली कुकम्बर इज रेडी फॉर फर्स्ट हार्वेस्टिंग in 30 to 40 days of planting depend upon the climatic condition and crop management practice. Harvesting is done when the fruit are the more less cylindrical and the well filled. The should be carrying out early morning या late evening। मतलब जब भी हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो यह कतो अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे या फिर लेट इवनिंग के समय पर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। The produce should immediately be move the cool and the shade and the ventilation area, and the fruit are the harvested manually, so these should be clipped and the snaps with the slightly twist motions, and should not be pulled of the vines, and the minimum
minimize pull and the fruit keep on depending on the plant grow and reach harvestable stage in 10 to 14 days after flowering opening. डिजीज के अंदर हम बात करते हैं कुकम्बर की डिजीज एंड द पेस्ट। इसमें पहला है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू का जो साइंटिफिक नाम है इसका सीडोमोनास कोवेंसिस। एंड सेकंड में पाउडरी मिल्ड्यू का जो सिम्टम की बात करते हैं मैनेजमेंट के लिए हम कहाँ इसमें है बैंको जेब का मतलब इसमें करते हैं। अगर उसमें है तो फिनोक्जोल्स या ट्राइमोरपा। इसमें है ट्राइडीमॉर्फ 0.1% एंड दी कार्बोजिन को भी 0.1% से उसको ट्रीट कर सकते हैं। सेकंड इसके बाद है पाउडरी मिल्ड्यू के बाद में है एंथ्रेक्नोज। जो एंथ्रेक्नोज का जो जूलॉजिकल नाम है कोलेस्ट्रोट्राइकम लॉन्गेरियनम। आगे हैं सम अदर डिजीज हैं फ्रूट रोट वाली मोजेक एंड द लीफ डिसोर्सन्स। इसके बाद है सम ऑफ पेस्ट। कुछ पेस्ट के अंदर हम बात करते हैं कुकम्बर। पहला है फ्रूट फ्लाई, सेकंड है रेड पम्पकिन बीटल्स। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर बात करते हैं जो कुकम्बर की फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। पहला है बिटरनेस, सेकंड है कुक्ड फ्रूट एंड दी कुकिंग और कर्वेचर्स। थर्ड में आता है प्रस्ट या लो टेम्परेचर इंजरी। फोर्थ में आता है पीलो डिसऑर्डर्स एंड फिफ्थ में आता है फ्रूट स्प्लिटिंग एंड क्रैकिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।